लेके आया, हम लोग बंदूक भी नहीं है। Our very simple demand is no dams, please, please go back. That's it. No dam, no public hearing, nothing, so please go back. मेरा ड्यूटी बनता है आप लोग का जो ये है व्यूज़ है एविडेंसेस है, अगर ठीक है डैम बनना नहीं है वो भी बोलना है, उसी पे हम लोग नोट करके भेजा करते हैं। This is a platform. तो They're इसीलिए only saying, हम लोग हियरिंग करने के लिए देने से Okay, from this platform, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि we don't want dam. That's it. हम लोग को ये डैम नहीं चाहिए। आराम से चला जाओ, प्यार से बोला जाओ, चला जाओ। Dibang Valley, the land of the Idu Mishmis, is located on the southern flank of the Himalayas in the northeastern state of Arunachal Pradesh. Largely hilly, with rich forest cover, snow-covered peaks and rare but enchanting flora and fauna, it is also the abode of their almighty Maselo Ziyunu, the holy pilgrimage of Atho Popu, the source of sustenance, their livelihood and their world view. This is where the government of India has proposed the gigantic 3,000 megawatt Dibang multipurpose project on the river Dibang, locally called Talo, the source of life and soul of the 12,000 Idu Mishmis. With a dam height of 288 meters, a reservoir of 43 kilometers, this mega project is going to submerge 6 villages, 1,500 acres of cultivable and homestead land, uprooting more than 200 tribal people. It will destroy around 14,000 acres of pristine forests and result in the influx of a staggering 6,000 project workers, the outsiders. अभी जो है हम लोग यहाँ इतना हम लोग का रहन जो है इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात एक है डेवलपमेंट नहीं है, डेवलप नहीं है कहीं जाना, लेकिन डैम बनने के बाद डेवलप होगा, लेकिन हम लोग वो डैम बनने का हम लोग यहाँ रह नहीं सकेगा। डेवलप किस लिए? क्या चीज को डेवलप करते हैं? हम लोग कुछ जानते हैं। डेवलप अभी एजुकेशन है, एजुकेशन है मोस्ट बेटर, वो जो स्कूल सबसे बड़ा चीज है, एक मेडिकल है वो सबसे बड़ा चीज है, और इलेक्ट्रिसिटी अभी पावर प्रोजेक्ट ये दीवान को रोका कि क्या होगा? यहाँ का पानी से तो इस पानी को हम मेरा डाउट से ये पानी को रुका दे जाएगा तो जरूर ये पानी गंदा हो जाएगा। वो नेक्स्ट वीक देखे वो दीवान के लिए वो पानी ना आगे धान हम लोग का क्या बनेगा? हाँ कि उल्लू होने से दो जोगला भागेगा ना, हम तो उल्लू नहीं ना, बांध नहीं ना, कैसे हो दो इन्वेस्टमेंट कैसे देगा, जगह कैसे छोड़ेगा नहीं, जाने में कैसा जाएगा? अपना देश अपना जमीन का अपना बॉटम का जमीन का छोड़ के जाने कैसा जाएगा? पाकिस्तान में कैसा जाएगा? जाएगा नहीं, हम लोग जाएगा नहीं ना, आप मजीद हम लोग जाएगा नहीं ना। अभी नदी रुकते हुए वो फाड़ के चल गया तो हम सारे भी तो गड्ढा में फिर घुस जाना पड़ा, डर है बोल के ऊपर जाने से भी कहाँ होगा? नदी अगर फाड़ के चल गया तो जमीन में उतर जाएगा, तो हम सारे वो मच्छी का साथ ही चला जाना पड़ेगा, उल्टा मच्छी हम सारे को खा जाए। NSPC टोटल नो डैम, नो नीड, ओके? हमको नहीं चाहिए, ओके?
we have to remember that a particular culture is congenial to the landscape. According to the landscape, the people have their lifestyle. And what happens when those lands are submerged and those lands do not remind our children that they had once that type of lifestyle, and the necessities which they bear on it, whether it is hunting, whether it is anything, whether it is rearing our domestic animals, everything, totally it will be wiped out. Naturally, it will seem as if it is a cultural genocide in a way, because the younger generation would forget in their time that exactly what their forefathers used to do, how they used to live. They would not even remember a piece, the landscape, the whole thing would be changed by that moment. Idu Mishmi is a very, very individualistic society है. आप देखते होंगे कि ईदू का घर है, एक बहुत दूर पहाड़ में एक घर है. He is king there. वो किसी दूसरे बस्ती से उसका टच नहीं रहता है. वो अपने ही बस्ती में, वो अपना फिशिंग ग्राउंड अलग है, हंटिंग ग्राउंड अलग है. कोई दूसरा आदमी आकर के उसको कुछ नहीं कर सकता है. In our traditional belief, as an Idu, we have to keep some safe distance from the mountain, the forest, the trees. We need space like. If you are cutting a tree, you are supposed to pray to the spirit of the forest that you are chopping down a tree, we say like that. I need to feed my stomach, so I am taking out the resource from your forest. To the spirit, to the mountain spirit, to the forest spirit, we talk like that. If you are killing an animal, we offer some part up to the spirit again and say that I thank you for giving me this resource. And this part we do in any traditional hunting, any traditional whatever cultivation we do, we pray that way. So this is how we are conserving this society as whole, like our preservation system. Like it's an anciently, wisely followed concept that you won't go for mass killing, you won't destroy the forest in large scale. And every tree, every big tree has its own spirit, we say like that. So all of a sudden, when this project comes, there is no consideration for that spirit which is guiding this mountain and the forest, which is guiding the environment total. So that this value of tribal values, living together, harmoniously living with the forest, those elements get lost nearly. Cho pra cho. Alo. Pra ya tika cho. Cho pra ya. Alo. ये हमारा एलिफेंट का नेचुरल सॉल्ट लेक है और जगह का नाम है आपका चेको स्ट्रीम है. एक छोटा सा रिवर है जिसमें हर साल आपका हाथी आकर के इसमें नमक चाटने आते हैं. और ये मेन आपका एलिफेंट का कॉरिडोर है. ये आपका दिवांग ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में है. तो आपको शियांग से, लोहित से, तिराप से और ये जितना थाईलैंड के जो एलिफेंट्स है वो सब यहीं से पास होकर के सॉल्ट लेक को ये अटेंड करके वो लोग निकल जाते हैं. ये डाउन स्ट्रीम होने के वजह से ये लोग का मैक्सिमम जब मल्टीपर्पज़ डैम के लिए जब काम करेंगे तो डाउन साइड से भी वो लोग जाएंगे,
फिर यहाँ से अभी एक नया और रास्ता निकल रहा है जिसमें ये आपका डिसमेंटल हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। शायद हो सकता है ये इन फ्यूचर अगर डैम बनने लगेगा, ये हमारा नेचुरल सॉल्ट लेक जो एलिफेंट का जो है ये नहीं रहेगा। तो ये सब हमारे सामने अभी दिखाई देता है। मूली जहाँ पे डैम बन रहा है उसमें तो टकिन का ही मेन ग्रेजिंग एरिया है, रेड गोरल का है, देन योर टाइगर का उसी अंदर में रहता है वो भी, देन थार जो शेरू जो बोलते हैं वही मूली के अंदर में है। वहाँ इसलिए था कि वहाँ कोई आदमी ज़्यादा नहीं है, पोचिंग वगैरह वहाँ नहीं होता है, एक टफ एरिया था जिसमें वो लोग रह रहा था। अभी हमें मल्टीपर्पज़ डैम बनने लगेगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। In their inundation map, we have seen that dying earring wildlife sanctuary is also being inundated. But the NSPC did not mention or did not highlight the dying earring wildlife sanctuary, which is in East Siang district. And one more, Debru Sadia Wildlife Sanctuary is also within the inundation map, but it is also not highlighted there. These trees, these animals, this river, this everything are part and parcel of our tradition and culture, na? So like, if there is some disbalance in this nature, obviously this will impact hugely on our tradition and culture. तो वो ये एक तो हमारा ये डर है कि हमारा ट्रेडिशन एंड कल्चर में इम्पैक्ट करने वाला है, हमारा ज़मीन जाने वाला है। मेरे हिसाब से जो हम लोग खुद माइनॉरिटी में आ जाएगा, पॉपुलेशन इन्फ्लक्स का, इसका भी बहुत चिंता है। बट खास करके जो गांव वाले हैं ना, उनका यही चिंता है कि हमारा ज़मीन चला जाएगा, हमारा घर चला जाएगा। तो आज के दिन में क्या है, हमारा यहाँ तो जानते हैं आप लोग, पूरे हिली एरियाज है, पहाड़ है। तो वी हैव गॉट हार्डली वेरी फ्यू प्लेन एरियाज, फुट हिल्स, जहाँ में आवर पीपल आर ऑलरेडी सेटल्ड, our people are already inhabited in these places now. So once this dams comes up, तो क्या हो जाएगा, मतलब जो थोड़ा बहुत प्लेन एरिया है it will be submerged. तो बचा क्या, only the hilltops. तो our people cannot go and sit on hilltops. Fine. अगर हमारा आदमी hilltop में बैठ भी जाता है, but then वो फिर क्या कहते हैं, खेती कहाँ करेगा hilltop में? What? वो लोग क्या कह रहे हैं कि NSPC वाले की they will make this अपार्टमेंट बना देगा, दुनिया भर का बिल्डिंग बना देगा रहने के लिए। बट देन क्वार्टर में बैठा है, आप कब तक खिलाएगा? हाँ, उनको कुछ काम करने में तो आना पड़ेगा ना। क्वार्टर में बिठा के तो आप जिंदगी भर उसको तो नहीं खिला सकते। यू शुड नो, यू शुड गिव हिम एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट। उसको एम्प्लॉय कराने के लिए तो उसको कुछ, ही शुड बी लिटरेट और उसको टेक्निकली साउंड बनाना पड़ेगा, तभी आप एम्प्लॉय दे सकता है। एक बस्ती से एक आदमी को, एक बस्ती से इलिटरेट आदमी को बस्ती वालों को लेके आके एक बिल्डिंग में बिठा दिया, दैट्स नॉट कंपेंसेशन। वो तो आज तो रह जाएगा, फिर कुछ दिन में तो वो बिल्डिंग ही बेच के चला जाएगा, उसके पास अल्टरनेट सोर्स कुछ नहीं रहेगा, आमदनी कुछ नहीं रहेगा, तो क्या करेगा, बिल्डिंग में कौन खिलाएगा? दिस इज आवर कंसर्न। Construction of this dam will completely damage our Idu Mismi tribe, and I'm so sure this is the second time the government of India developmental policy will damage us to the maximum. During 1950 earthquake, we have lost our population, nearly 70% of the population we lost during 1950 earthquake. The Sadia was the epicenter, and now after that, again on this Dibang river, which we call Tano river, this is again going to damage our cultural identity, and
The whole our life system is, and our tradition, culture, faith, belief, everything is attached with this river. जितना भी गांव है सब अपना कल्टीवेशन करता है, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन। तो बात यह है कि जितना भी एग्रीकल्चर के लिए जो सूटेबल प्लेसेस है वो रिवर वैलीज में ही होता है। तो अभी रिवर वैली से डूब गया, सबमर्ज हो गया। तो टॉप लेवल में अगर काट के बिठा देते तो अब बिठा दे, घर भी बना देगा, रास्ता, रोड फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी फैसिलिटी दे दीजिए, लेकिन वो आदमी इलिटरेट है, कुछ काम नहीं कर सकता है। सिर्फ ये कि वो कल्टीवेशन करके खा सकता है। तो कल्टीवेशन के लिए अगर सूटेबल नहीं है तो वहाँ पे बैठ के क्या करेगा? कल्टीवेबल लैंड अगर नहीं मिला है, एनएचपीसी का जो रिपोर्ट का हिसाब से 1.75 लाख देने का बात था, तो अगर उसको दिया भी जाता है कि हमारा आज हम लोग का जो यहाँ का लोग है वो लोग का पास तो मनी यूटिलाइज करने का तो आइडिया नहीं है। अभी पैसा आने से पैसा यूज़ करना भी तो सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तो वो तो आता नहीं है। अभी मिला वो खूब अपना डिज़ायर से जितना वांट से उसको फुलफिल कर लिया, नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा? और नेक्स्ट जनरेशन को छोड़ दीजिए, वो जीते जी वो खुद का ही हालत ख़राब हो। जैसे सिविलाइजेशन तो अलोंग द रिवर होके आता है, और इतना नीचे भी वो लोग नहीं जाते हैं जहाँ में वो लोग का अपना जैसे क्रॉप्स लगाते हैं तो उसमें अच्छा पैदावार हो, उस इलाका को वो लोग ने चुन करके बैठा हुआ है। ये लोग रोइंग के तरफ भी गया नहीं, अनिनी के तरफ भी गया नहीं, जिसमें इनका अपना क्रॉप्स सही होता है और अपना आपका ट्रेडिशनल जो हंटिंग ग्राउंड्स वगैरह होता है, फिशिंग ग्राउंड जहाँ में सुविधा मिला है, तो ऑलरेडी वहाँ पे वो लोग सेटल्ड है एंड दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद देयर प्लेस। ना ये लोग आगे ऊपर तरफ जाना चाहता है, ना नीचे जाना चाहता है। इसलिए वी आर ऑल्सो बाउंड टू कोऑपरेट विद देम, क्योंकि हमारा जो हमसे जो सीनियर सिटीजन से जो कहता है उसको तो हमको मान के चलना पड़ेगा। और बिजली के बारे में ये लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ तो बिजली के बगैर भी चला है, लेकिन छोटा छोटा मिनी ये आपका माइक्रो हाइडल्स बन रहा है, उसी में काफ़ी सुविधा है। हमको बड़ा इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से पावर एक्सट्रैक्ट मत करो, मत निकलो, नहीं बोलेगा। यस वी नीड पावर, पावर फॉर व्हाट? तो आप लोग तो प्रो डेवलपमेंट ये बोलेगा कि इंडस्ट्रीज के लिए तब आके ये आएगा। नो 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 नो, वो नहीं हो सकता, बिकॉज पावर मिलने के बाद भी पावर किसका कंट्रोल में रहेगा? पावर किसको मिलना चाहिए? हु विल रूल दैट? उसके बाद ईद मिशन ये हमारे ईद मिशन का जगह 30-40 साल हो गया। यहाँ का जो लाइवलीहुड है, यहाँ का जो बिजनेस एक्चुअली मच्छी हो गया, मिथुन हो गया, वो बाहर तो नहीं होता है, लेकिन ये जो हम अपना कम्युनिटी के अंदर में 2-4 पैसा जो है अपना खाने पीने का जो इधर उधर करता है, वो मच्छी एक तो छोटा छोटा मच्छी होता है, सीजनल होता है वो एक्चुअली। समर में जो है वो छोटा छोटा जो ट्रिब्यूटरीज में अंडा देने आता है, तो वो सब जो है मेन में तो पकड़ नहीं सकता है, लेकिन जो छोटा छोटा उसमें आता है उसको लेके हम लोग का जो लोकल जो रे फेस्टिवल होता है उसमें यूज़ होता है मच्छी का। और बड़ा वाला भी, जैसे कि अभी हम लोग का जो रे फेस्टिवल हुआ, हम लोग का जितना भी जो माने रिलेटिव्स हो गया, जितना सिस्टर्स जो बहन लोग होगा, माता लोग होगा, उन लोग जो है फेस्टिवल में आता है, उसको क्या करता है, मच्छी देता है हम लोग।
हम लोग का जो लड़का लोग रई पूजा करता है, रई पूजा करने से तो मछली और ये चूहा को बहुत कलेक्शन करके, जैसे मैंने कोई मैंने बहन लोग मैंने पूजा में अटेंड करने आता है या तो पैसा देता है तो बाया लोग का पूजा में, तो उसका रिप्लेस में जो बाया लोग ना बहन को वो मछली या ये चूहा ना गिफ्ट मैंने ऐसे रिटर्न करता है। मैंने वो चीज़ें नहीं ख़त्म हो जाएगा। स्पेशली लड़की लोग का खाने का बात होती है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हम लोग का ट्रेडिशनल फेस्टिवल होता है, कल्चर होता है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगा। तो डैम बन जाएगा तो मछली कहाँ से मिलेगा, तो कोई रई पूजा होगा ही नहीं है। Culturally, to now, I am not hitting on some religion. जैसे कि हिंदुज़म है, देन क्रिश्चियनिटी है, सब आकर के जो अपना परंपरा का जो पूजा पाठ वगैरह जो करते थे, अब देखता है बिल्कुल नहीं रहा। चुने गिने एक दो है जो प्रीस्ट हम लोग अभी यूज़ कर रहा है। अगर वो मर जाएगा तो हमारा हिंदू समाज के जो शिक्षित लोग हैं वो लोग अपना ट्रेडिशनल जो परफॉर्मेंस जो करते हैं उसको सीखने के लिए कोशिश करना चाहिए था। हमारे समाज में जो जैसे कि प्रीस्ट को बैठा दीजिए, अभी बरसात गिराने के लिए बोले वो बरसात गिरा देगा, रेन। फिर जब ज़्यादा बरसात हो रही है तो फिर वो धूप को लेके आ सकता है। दिस आर सो ब्यूटीफुल आर्ट जो है ख़त्म होते जा रहा है। ये चीज़ जो है कोई साइंटिस्ट भी नहीं कह रहा कि मैं अभी बरसात गिरा दूंगा, या तो ये न्यूक्लियर का बात हो जाता है। लेकिन हमारा हिंदू समाज में अब एक समाज के अंदर में एक लड़का किसी ने चोरी किया, हम 10 आदमी हैं, 10 आदमी में पूछताछ हुआ कि आपने चोरी किया कि नहीं किया, कोई ना कोई तो करके बैठा होगा, तभी तो सामान गायब हो गया। तो उसमें प्रीस्ट को बुलाते हैं, प्रीस्ट बैठ करके उसमें पानी गर्म करेगा, उसमें जिसने चोरी किया उसका हाथ पिघलना है और जिसने नहीं किया उसका कुछ नहीं होगा। ये चीज़ भी हम लोग ने टेस्ट करके देखा, जो चोरी करता है उसका हाथ जल जाता है, बाकी का क्यों नहीं होता है। We cannot compromise our identity with the development of the nation. In fact, the people from the mainstream feels that for the development of nation, we should make this dam. But we cannot compromise. We are not against development. Particularly, we are against this Dibang multipurpose project, which cannot be compromised. Only our elected leaders, they are desperately trying to force on us. After the 6th hearing, the Honorable Chief Minister has declared about the net present value. They have decided to give us 25% of net present value after 6th hearing. So there are a lot of hidden agendas are there. They are saying they will preserve our culture, they will preserve our many things. They are talking of compensating us. But our people are quite damn sure that we have been cheated in many occasions by the government of India. People are facing the problem. Now, the people's problem is so small and the Tehri Dam's revenue generation is so huge, मायने नहीं रखता है। आदमी का जो प्रॉब्लम्स है, बस्ती का प्रॉब्लम्स है, वहाँ लोकल प्रॉब्लम्स है, मायने नहीं रखता है कि गवर्नमेंट तो बिगर रेवेन्यू में लेता है ना। जब यहाँ दिबांग वैली से 1000 करोड़ में अगर पैसा मिलने लग गया, फ्यूचर में अगर दिबांग वैली में यहाँ के लोगों को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तब भी they can't do anything. Not only here, say anywhere ना कहीं भी इस ढंग का not only them any kind of project खड़ा होता है, तो अगर immediate voice आता है तो जो फ्यूचर प्रोबेबल विक्टिम का तरफ से आता है
इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि वो बाकी देशवासियों को वो पावर डिनाई करेगा। इट्स क्वेश्चन ऑफ कंसर्न ना। आप यहाँ से पावर ले जाएगा, अगर हम उसको उसमें कुछ ऑब्जेक्शन डालेगा तो फिर आपका वहाँ से और डबल ऑब्जेक्शन है, यू आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। आप इतना सारा आबादी पड़ा हो, उनका बारे में नहीं सोचता। नो, हम भी पहले अपने बारे में सोचेगा। Downstream is facing vulnerable floods every year. That is 100% sure. There is no any provision to protect us, and there has been no any public awareness for this project. So we cannot accept this project as a development, but it is a forceful, and we cannot sustain its impact on us. It is very much sentimental to the government of Arunachal Pradesh and government of India too, that 8-storied building is not permitted in Northeast region because it is seismic zone 5. And how a 288 meter high dam is being approved by the government of India and also accepted by the government of Arunachal Pradesh. Aduman doza hone inine chana bido line kajama कहता है कि डेवलपमेंट होगा होगा होगा। अब कैसे होगा ये तो अभी तो पता नहीं। तो हम ये चाहता है ये चीज़ ही माने गवर्नमेंट को जो है आगे आना चाहिए कि जो है ये कैसे होगा। प्रथम आप एजुकेशन दें। डेवलपमेंट कोई ये तो नहीं चाहता कि डेवलपमेंट ना हो, होना चाहिए, लेकिन लोकल पॉपुलेशन का कॉस्ट लेके नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल से जो है मैं ये समझता हूँ जो लोकल यहाँ के निवासी है, कितना 100 साल से यहाँ रहते हुए आया है, उसको अगर आप प्रॉब्लम में लाएगा तो किसके लिए डेवलपमेंट, आखिर मेरा जो कहना है किसके लिए। किसी का स्वाद के लिए होगा, किसी का डेवलपमेंट के लिए होगा, लेकिन मेरे लिए तो एक नुकसान है ना। अब डैम आ गया तो मैं कौन सा इपरा से बढ़कर और कोई दूसरा बनना है क्या? आई विल रिमेन एज इट इज टिल डेथ। जब है तो दूसरों के लिए अच्छा कर सकता है, एक बांट सके। और नेचर इतना अच्छे है जो कि ऑलरेडी सबको बांट रहे हैं, तो उसको हम ख़त्म करेगा, इसको झड़ को उखड़ेगा तो मैं कौन होता है? You can build a dam, but you cannot create a forest. You will be destroying a forest. You just plant trees
But you cannot create a forest which has been created, which has been brought up in centuries together, thousands of years that has taken to build up. But you are creating an artificial structure just for 20 years, 50 years, and destroying a diversity of the forest totally. A huge area that which has taken thousands of years to grow, which you are destroying in just span of 15 years. And you say that is development. You are ultimately destroying the diversity of the earth. मुरली में जो हमारा नेचुरल जो चीज़ हमको मिलता था, मैं तो बचपन से कॉलोनी से जब आते तो मुरली होकर के ही आना पड़ता है, आंसू पानी होकर आना पड़ता है और रिवर रूट के थ्रू हम लोग आते हैं। तो अभी वो चीज़ डैमेज हो जाएगा और मेरा वो बचपना जो है वो तो शायद नहीं मिलेगा इस ज़िंदगी में।